بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے. آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس 10th میتھمیٹکس کی جو نیو بک ہے اس کی سیریز کا لیکچر نمبر 11، جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کونجوگیٹ آف اے کمپلیکس نمبر کو. اس سے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا کمپلیکس پلین کو، جس کا لنک جو ہے وہ آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی تاکہ آپ جو ہے ایزیلی وہ لیکچر بھی لے سکیں. تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں. کونجوگیٹ آف اے کمپلیکس نمبر، اس ٹاپک کی جتنی تھیوری جتنا کانسیپٹ ہمیں دیا گیا تھا اس کو میں نے ڈیوائڈ کر لیا ہے 4 پارٹس کے اندر، تاکہ ہمارے لیے اسے سمجھنا اسے یاد رکھنا وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے اور سمپل ہو جائے. یہ جو 4 پارٹس ہیں ان میں سے جو فرسٹ پارٹ ہے اور تھرڈ پارٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے اسے اسکپ بالکل بھی نہیں کرنا، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ جو ہیں ہر ایک پوائنٹ کو اچھے سے سمجھ سکیں. تو فرسٹ پارٹ کے اندر ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے، اس کی ایگزامپل کو دیکھیں گے، اور سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم اس کی جو جیومیٹریکل ریپریزنٹیشن ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے. تھرڈ پارٹ میں ہم کچھ امپورٹنٹ ریزلٹ جو ہیں وہ کانجوگیٹ کے ڈسکس کریں گے، اور فورتھ پارٹ کے اندر ہم اس کی پراپرٹیز کو ڈسکس کریں گے. تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ پارٹ سے. فرسٹ پارٹ کے اندر ہم نے اس کی ڈیفینیشن دیکھنی ہے، تو ڈیفینیشن کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں. Conjugate of a complex number x plus y iota is defined as the complex number x minus y iota. کہ اگر آپ کو conjugate چاہیے complex number کا، اب complex number کی فارم کیا ہے x plus y iota، تو conjugate اس complex number کا کیا ہوگا x minus y iota. ان simple word میں آپ نے جو ہے iota کا سائن چینج کر دینا ہے. Let's suppose اگر یہاں پہ پلس ہوگا تو مائنس ہو جائے گا، اگر یہاں پہ مائنس ہوگا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا. تو یہ آپ کسی بھی کمپلیکس نمبر کا کانجوگیٹ جو ہے وہ اس ٹرک سے ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ون، آپ کے پاس جو ہے کانجوگیٹ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم ایک سمبل استعمال کرتے ہیں، اور وہ سمبل کیا ہے، زی کے اوپر ہم لگاتے ہیں بار. جب بھی آپ کو یہ بار نظر آئے گی تو اس کا مطلب ہے اس کمپلیکس نمبر کا آپ نے لینا ہے کانجوگیٹ. ایک اور میتھڈ یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کانجوگیٹ چاہیے کسی بھی کمپلیکس نمبر کا، تو آپ نے سمپلی چینج کر دینا ہے آیوٹا کو مائنس آیوٹا سے. دونوں میں سے جو میتھڈ آپ کو آسان لگے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، دونوں میتھڈ بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ سمپل ورڈنگ میں اتنی بات یاد رکھ لیں کہ آیوٹا کا سائن جو ہے میں نے چینج کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ تھرڈ ون پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ سمپل اگر آپ آیوٹا کو مائنس آیوٹا سے چینج کر دیں گے تو آپ کو جو ہے اس کا کانجوگیٹ مل جائے گا. نیکسٹ ون، ہم اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزامپلس کس طریقے سے سالو ہوں گی. لائک اگر آپ کے پاس زی جو ہے 3 مائنس 8 آیوٹا ہے، مجھے اس کا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کانجوگیٹ، کیونکہ بار لگی ہوئی ہے، اس کمپلیکس نمبر کو کانجوگیٹ چاہیے. تو سمپل آپ کو کیا کرنا ہے، کانجوگیٹ والی جو ٹرم ہے اس کا سائن کیا ہے مائنس، تو ادھر کیا ہو جائے گا پلس 8 آیوٹا. سمپل یاد رہے آیوٹا والی ٹرم کا سائن چینج کرنا ہے. نیکسٹ ون، آپ کے پاس سیکنڈ ایگزامپل گیون ہے زی ایکول ٹو 2. تو یہ کمپلیکس نمبر ہے، بالکل ہے، کیونکہ اس کا جو امیجنری پارٹ ہے وہ 0 ہے، تو میں ساتھ لکھ لوں گی 2 پلس 0 آیوٹا. تو مجھے اس کا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کانجوگیٹ. تو کانجوگیٹ کس طریقے سے آ جائے گا 2 مائنس 0 آیوٹا، اور اسے دوبارہ سے ہم رائٹ کر سکتے ہیں 2 بھی رائٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں سے ایک امپورٹنٹ بات جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اب سمپل یہاں پہ یہ ریئل نمبر تھا، ریئل کا ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا کانجوگیٹ، تو آنسر بھی کیا آیا ہے آپ کے پاس ریئل ہی آیا ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ سے کوسچن پوچھا جا سکتا. آپ نے یاد رکھنا ہے ریئل کا کانجوگیٹ لیں گے تو ریئل ہی آئے گا، کیونکہ سائن کس کا چینج کرنا ہوتا ہے کانجوگیٹ میں، آیوٹا والی ٹرم کا، اور آیوٹا یہاں پہ ہے 0، تو جو ہے 0 کے ساتھ اگر آپ پلس لگائیں مائنس لگائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تھرڈ ون ایگزامپل میں آپ کے پاس گیون ہے 5 آیوٹا. تو 5 آیوٹا کا کانجوگیٹ لیں گے تو سمپل آپ کیا کر دیں گے، آپ اسے مائنس کا کر دیں گے. پلس کا 5 آیوٹا ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا مائنس کا 5 آیوٹا ہو جائے گا. تو نیکسٹ ون، سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم نے ڈسکس کرنی ہے اس کی جیومیٹریکل ریپریزنٹیشن، کہ
कि आप कॉन्जुगेट को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो ये जो रेड लाइन से मैंने एक लाइन लिखी है इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले आपको ये सिखा दूं कि आपने जो है कॉन्जुगेट को किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाना है। तो सिंपल अगर मैं एक नंबर ले लेती हूँ 3 + 4 आयोटा, उसको ऑर्डर्ड पेयर में किस तरीके से लिखूंगी 3 और 4, 3,4। तो अगर इसी का कॉन्जुगेट लें 3 - 4 आयोटा, उसको ऑर्डर्ड पेयर में किस तरीके से लिखूंगी 3, -4। ये एक नंबर और ये उसका कॉन्जुगेट, तो हमने इन दोनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाना है 3 और 4। 3 को रियल एक्सिस पे देखेंगे, 4 को इमेजिनरी पे देखेंगे। तो 3 जो है रियल एक्सिस पे यहाँ पे आ जाएगा और इसी के साथ जो है इमेजिनरी एक्सिस पे हमें 4 देखना है, तो उसके सामने ये जो पॉइंट है हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। नेक्स्ट पर हमने प्लॉट करना है 3 - 4, तो यहाँ पे 3, -4 यहाँ पे हमें मिलेगा। तो ये जो प्लॉट करना है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिखाया, तो दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला जो नंबर होगा उसे आपने रियल एक्सिस पे देखना है, दूसरे नंबर को आपने इमेजिनरी एक्सिस पे देखना है। तो यहाँ पे प्लस का 3 रियल एक्सिस पे और हमने जाना है -4 तक, रियल जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके -4 तक। तो यहाँ पे ये सामने चेक करेंगे, ये जो -4 इमेजिनरी एक्सिस का ये जो पॉइंट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 - 4 आयोटा। अब यहाँ पे इन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो उस रिलेशन को आपने समझ लेना है कि लेट्स सपोज मैं ओरिजिन से डिफाइन करती हूँ कि ओरिजिन से पॉइंट आउट करती हूँ कि ये जो एक्चुअल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था वो इस डायरेक्शन में है और इसी का कॉन्जुगेट इसी की रिफ्लेक्शन पे दूसरी साइड पे मौजूद है। देखिए ओरिजिन से पॉइंट आउट किया, ये दूसरी साइड पे मौजूद है, तो ये नंबर है एक्चुअल z कॉम्प्लेक्स नंबर और ये इसका कॉन्जुगेट है। ये जो दोनों है ये रियल एक्सिस के ऊपर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ये चेक कीजिएगा, कॉन्जुगेट ऑफ z कैन बी ऑब्टेन, कि कॉन्जुगेट जो है z का वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय रिफ्लेक्टिंग z ऑन रियल एक्सिस, कि अगर आप z को रिफ्लेक्ट कर दें, रिफ्लेक्ट मतलब उसका अक्स, तो अक्स बिल्कुल सेम टू सेम होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि सेम इमेज होती है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। तो इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल लेके उसे प्लॉट करके देख सकते हैं। नंबर और उसके कॉन्जुगेट का रिलेशन हमेशा यही होगा, वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं किस एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे। तो नेक्स्ट वन थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो डिस्कस करने हैं, जिसमें फर्स्ट रिजल्ट ये है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट, कि आपने क्या लेना है इसका प्रोडक्ट लेना है, किसका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसके साथ, विद इट्स कॉन्जुगेट, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप उसके कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट लेते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आपके पास एक रियल नंबर आता है। एक क्या आएगा आपके पास रियल नंबर। लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा और इसी का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 - 2 आयोटा। एक नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट से मैं इसको क्या करवा रही हूँ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। तो 1 + 2 आयोटा ये मेरे पास एक्चुअल नंबर है और उसका कॉन्जुगेट क्या है 1 - 2 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप जानते हैं एक सिंपल रूल हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास a + b a - b से मल्टीप्लाई होता है तो फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, a और b दोनों यहाँ पे सेम है, फर्क क्या है एक में प्लस और एक में माइनस। तो फॉर्मूला क्लोज होगा, a क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है 2 आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, लेकिन 2 आयोटा का स्क्वायर जो है वो बहुत ध्यान से लेना है आपने। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, आप जानते हैं कि जब भी आयोटा स्क्वायर आ जाए तो हमने उसकी वैल्यू को क्या करना होता है इंसर्ट करना होता है। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या डाली है मैंने -1। ये माइनस जो है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके इसे क्या कर देगा प्लस। तो 1 + 4 जो है आंसर क्या देगा आपको
5 जो कि क्या होता है हमारे पास एक रियल नंबर होता है। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, एक रियल नंबर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एज ए MCQs आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आप प्रोडक्ट लें कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ तो आंसर क्या होगा, रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, या किसी भी तरह का और ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट वन है आपके पास कि x प्लस वाई आयोटा और x माइनस वाई आयोटा ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। दे आर नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कि ये जो दोनों नंबर्स होते हैं ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। लेट्स सपोज मैं ये नंबर लेती हूँ x प्लस वाई आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस वाई आयोटा। अगर आपको ये गिवन हो और आपसे कॉन्जुगेट पूछा जाए तो क्या होगा, x प्लस वाई आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस वाई आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, x प्लस वाई आयोटा। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। थर्ड वन पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम इस्तेमाल भी करते हैं कि आपके पास जब आपके पास डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं तो हमने उन्हें रैशनलाइज करना होता है, और रैशनलाइज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्जुगेट का। कि लेट्स सपोज कोई एग्जांपल मैं आपके सामने राइट कर रही हूँ कि अगर आपके पास आ गया है 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा, तो आपने इसे सॉल्व करना है तो रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप इसे मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और क्या करवाते हैं, इसे डिवाइड भी करवाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट का जो है वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्जुगेट जो है वो डिनोमिनेटर को किस में चेंज कर देता है, अगेन रियल नंबर में चेंज कर देता है। तो ये जो चीज़ है वो आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट वन फोर्थ पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपने जो है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करके फिर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो आंसर किसके बराबर होगा। अगर हम उन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट ले लें और बाद में प्लस करें तो आंसर क्या होगा, सेम आएगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल के साथ प्रूव इसलिए नहीं की क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 के अंदर इन्हें हमने एग्जाम्पल के साथ इन सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है इंशाल्लाह। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करवाएं फिर उसका कॉन्जुगेट लें और आंसर किसके बराबर आएगा, कि अगर उन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर उसे मल्टीप्लाई करें दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। इसी के साथ थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के लिए है। तो जब भी डिवीजन का वर्ड आता है तो यही बात की जाती है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ फोर्थ वन प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने उसका लिया कॉन्जुगेट और फिर उसका कॉन्जुगेट ले लिया तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वापस से जी ही आ जाएगा। लाइक मेरे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, मैंने इसका एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया, मेरे पास क्या आया 2 माइनस 3 आयोटा। अब दोबारा से अगर मैं इसका एक दफ़ा ले लिया, अब दोबारा इसका लेने लगी हूँ तो दोबारा से क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, यानी वही चीज़ आ जाएगी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। एक दफ़ा कॉन्जुगेट ले लिया, अब फिर से लूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा, वही जी आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसे लाइक लाजमी करना है और आपने जो है मुझे कमेंट बॉक्स में रिव्यू लाजमी देना है, जस्ट मेरी मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं जो है इस तरह के लेक्चर्स आपके लिए ला सकूं। और सेकंड चीज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो से जो है वो आप अपडेट रह सकें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी ईमानिल्लाह।